নমস্কার বন্ধুরা, সায়েন্স সিটি ভ্রমণের আবারও একটি নতুন পর্বে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আগের পর্বে অর্থাৎ সায়েন্স সিটি ভ্রমণের ফার্স্ট পার্টে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হলে আমরা কী নতুন নতুন সায়েন্সের আবিষ্কার দেখেছি এবং বিভিন্ন স্থাপত্য ভাস্কর্যের নিদর্শন, এছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতির যে প্রাচীন রূপগুলো সেগুলো সায়েন্স সিটিতে কি সুন্দরভাবে একটা নিদর্শন তৈরি করে রাখা রয়েছে তার সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। তোমরা যদি না দেখে থাকো তাহলে ফার্স্ট পার্টের লিঙ্ক আমি উপরে আই বাটনে দিয়ে রাখলাম, তোমরা দেখে নিতে পারো। আমরা টিকিট কাটার সময় প্রথমে ডিসাইড করে নিয়েছিলাম যে কী শো দেখব, সেই রকম অনুযায়ী আমি টিকিট কেটেছিলাম এবং টিকিটে সেখানে টাইমটাও মেনশন করা ছিল কখন কোন শো হবে। আজকে আমরা দেখব প্যানোরামা শো এবং প্যানোরামা শোয়ের টাইম দিয়েছিল আমাদের দুপুর 1টার সময়। তার আগে আমরা একটুখানি সায়েন্স সিটিটা পুরোটা ঘুরে নিয়েছিলাম এবং তারপর আমরা সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হলে গিয়েছিলাম। এখানে বলে রাখি, সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হলে বিভিন্ন ধরনের শো হয়, তো চলো ঘুরে দেখি। এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করে একটুখানি রেস্ট নিয়ে এখন আবার বেরিয়েছি ঘুরতে। এখন আমরা যাব হচ্ছে প্যানোরামা হলের দিকে, আমাদের 1টার সময় শো আছে। তো চলো, আমরা চলে এসেছি হলে, গিয়ে দেখা হচ্ছে। হ্যাঁ, আস্তে যা আস্তে যা আস্তে যা, ওটা এক্সিট। চলো চলো, ডাইনোসর দেখবে। পেছন দিকে রয়েছে কিছু ছবি, তার পাশ দিয়ে যে সিঁড়িটা আছে এই সিঁড়িটা দিয়ে এখন আমরা উপরে যাচ্ছি। এখানে গেলে আমাদের যে প্যানোরামা যে শোটা আছে সেটা দেখতে পাবো। এটা হলো সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হল, আর এখানে ফার্স্ট ফ্লোরে দেয়ালের মধ্যেও লেখা রয়েছে কোন ঘরে কি শো চলছে। আর এই জায়গাটা হলো রেস্ট রুম, এখানে লিফটেরও ব্যবস্থা রয়েছে। আর তাছাড়া সায়েন্সের বিভিন্ন যে নতুন নতুন নিদর্শনগুলো তোমরা এই ফার্স্ট ফ্লোরে এলে দেখতে পাবে। আর এই যে ব্যারিকেড করা রয়েছে ফিতে দিয়ে, এইটা হলো প্যানোরামা শো দেখার লাইন। এইখানে যেহেতু এখনো টাইম হয়নি তাই জন্য এখনো কেউ আসেনি। তোমরা যদি আগে থেকে টিকিট না কেটে রাখো তাহলে এখানে এই সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হলে এসেও টিকিট কাটার ব্যবস্থা রয়েছে। টিকিট চেক করার পর আমরা এখন চলে এসেছি প্যানোরামা শো দেখতে। এখনো শো শুরু হয়নি, তো চারিদিকটা কেমন লাগছে অন্ধকারে চলো একবার দেখে নাও তোমরা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ দেয়ালে সব পেন্টিং করে রাখা রয়েছে, যে মডেল তৈরি করে রাখা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের, মানে মানুষের যে বিবর্তনের রূপগুলো। তবে হ্যাঁ, এই শোটা দেখার জন্য কোনো রকম চশমা ব্যবহার করতে হবে না। আর এটা যেহেতু প্যানোরামা শো তাই তোমরা যেখানেই দাঁড়াও না কেন চারিদিক থেকেই সমানভাবে ভালোভাবে দেখতে পাবে। मानव जाति हमेशा अपने बारे में सवाल करती रही है, यही हमें अद्वितीय बनाता है। पिछले 150 सालों में हमने जाना कि हमारे अस्तित्व के राज हमारे पैरों पर जमीन में दफन, आदिम उपकरण और जीवाश्म हड्डियों में। सबसे ज्यादा अफ्रीका से मिलते हैं। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने आदिम अवशेषों को खोजा है, उनमें कई अफ्रीकी जमीन में पाए गए हैं। हड्डियों के टुकड़े, आदिम उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही विशिष्टताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में कार्बन डेटिंग और अन्य हड्डी के टुकड़ों से डीएनए हासिल कर इसकी तुलना अन्य लोगों से कर सकते हैं। करीब 50 लाख साल पहले मानव वंश वृक्ष विभाजित हो गया, आगे वानर के रूप में विकसित हुए, जैसे हमारे करीबी आनुवंशिक संबंधी चिंपैंजी, जबकि अन्य हमारे आरंभिक पूर्वज के रूप में विकसित हुए।
एक अहम खोज से पता चलता है कि कब वानर इंसान के पैरों के निशान बताते हैं कि पूर्व मानव वानरों का एक समूह ज्वालामुखी की छाया में चला था। ऊपर ताका बाबन। वो भी 2 पैरों पर। हम इन पैरों पे कैसे चलने लगे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा उन्हें जंगलों की जगह कारण चाहे जो 4 पैरों की तुलना में 2 पैरों पर खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार शायद किसी आदि मानव ने वहीं पत्थर से फली को मारा होगा और टूट गया, और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उनकी याददाश्त बढ़ती है। कुछ समय बाद उन्होंने और उन्हें नुकीला बनाया ताकि उनका इस्तेमाल फली तोड़ने के साथ साथ मांस खाने से उन्हें अधिक प्रोटीन मिला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण उनके मस्तिष्क के आकार बढ़ गए। उनकी ताकत बेशक कम नहीं होगी, मगर वे परिस्थितियों से अनुकूल होने में वानरों से अधिक सक्षम थे और वे अफ्रीकी जंगल वाले इलाकों से बाहर जाने लगे। आदि मानव को मांस की तलाश में बाहर जाना पड़ता था जहाँ शिकारी थी। এইগুলো তো লাইট দেওয়া দরকার ছিল, होकर दूर तक चल सकते थे और इस प्रकार खतरों से भी बच सकते थे। হরিণ নিয়ে যাচ্ছে বাবানদা কাঁধে করে। मध्य पूर्व और एशिया में पाए गए जीवाश्मों से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में वे अफ्रीका से बाहर फैलने लगे। একটু এই দিক করে দেখো তাহলে। जैसे जैसे वे नई जगहों पर गए उन्होंने नए हुनर सीखे। उनके औजार बेहतर हुए जिनसे उन्हें मांस काटने में मदद मिली। उनके बाल काम करने होने लगे। शिकार तक तुरंत पहुंचने के लिए उन्होंने दौड़ना सीख लिया। शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें पसीने आने लगे क्योंकि उनमें अन्य जानवरों की तुलना में ज्यादा ग्रंथियां थी। कुछ साक्ष्यों के अनुसार शायद वे आंख का इस्तेमाल भी करते थे और उनके दिमाग बढ़ते हुए लगभग आज के हमारे मस्तिष्क के आकार के हो गए। लगभग 7 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नया समूह विकसित हुआ है जिसे हम होमो हाइडेलबर्ग या हाइडेलबर्ग मैन कहते हैं। उनके शरीर अधिक बड़े और मांसपेशियों वाले थे। अब वे सिर्फ मरे हुए जानवर ही नहीं खाते थे बल्कि खुद भी शिकार करने लगे। मामूली औजारों की जगह हाथ की कुल्हाड़ियों में ले वे पत्थर की नुकीली नोक और धारदार चाकू बनाना जान गए और शायद लकड़ी के कुल्हाड़ी का एवोल्यूशन यानी उत विकास की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रही। हजारों सैकड़ों सालों के दौरान हमारे पूर्वज अफ्रीका के बाहर यूरोप और एशिया में फैले। होमो हाइडेलबर्गेंसिस से कई नई संबंधित उनकी शारीरिक विशेषताएं एक समान थी, लेकिन उनमें से कोई भी आधुनिक मानव की तरह नहीं था। इन प्रजातियों में हम सबसे ज्यादा होमो निएंडरथालेंसिस यानी निएंडरथॉल के बारे में जानते हैं, जो हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। उनके शरीर छोटे और कठिने थे और वे ढंग सह सकते थे। उनके कंधे चौड़े, हाथ छोटे और नाक काफी बड़े थे। वे आधे पोशाक में और पत्थर काटने से पहले औजार का आकार तय कर लेते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उन्होंने हाथ चलाना और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया था। हमारे पास निएंडरथॉल के समय के पुरातत्व प्रमाण ज्यादा है। निएंडरथॉल की जीवाश्म हड्डियों की फ्रैक्चर
और जख्मों से हमें पता चलता है कि इनके जीवन मुश्किल भरे थे। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी उम्र लंबी भी हुआ करती थी। निएंडरथॉल एपोन से संबंधित प्रजातियों का लाखों साल वातावरण को सहते हुए सफलतापूर्वक रह सकते थे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में विकसित एक नई प्रजाति बाहर फैलने लगी। ये पहले आधुनिक मानव थे जिन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं। कुछ समय तक ये विभिन्न प्रजातियां साथ साथ रही। हमारे पास साक्ष्य है कि वे संकरित थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे, जैसे कहने, बनाने और इन्हें पहनने के तरीकों के बारे में। उन्होंने पोशाक के लिए जानवर की खाल का इस्तेमाल किया होगा। कई निएंडरथॉल लुप्त होने लगे, शायद इसलिए क्योंकि उनके मांसपेशियों वाले शरीरों को जरूरत पड़ती थी अधिक भोजन की। आधुनिक मनुष्य लंबे लेकिन कम वजन के थे। उनके बच्चे देर से व्यस्त होते थे, इसलिए उन्हें विकसित होने और सीखने के लिए ज्यादा समय मिलता था। उनमें चिंतन की क्षमता आ गई थी। वे निएंडरथॉल की तुलना में बेहतर तरीके से शिकार और भोजन इकट्ठा कर सकते थे। उन्होंने हैंडल युक्त औजार, बेहतर भाले, छेद वाली सुई, हार्पून और गहने बनाए। वे प्रजनन के प्रतीक में महिलाओं की भूमियों की नक्काशी की, गुफाओं में चित्र बनाए और हाथी के दांतों या चिड़ियों की हड्डियों से बांसुरी बनाई। उन्होंने आग का अधिकतम प्रयोग और नियंत्रण करना सीखा। आधुनिक चीजों के पुरातात्विक खोजों से हमें पता चलता है कि वे पारिवारिक समूह में रहते थे, आग हर समय मौजूद रहते थे। उन्हें उससे गर्मी और रोशनी होमो सैपियंस के लिए एक बड़ा सवाल था। 1 लाख साल पहले मध्य पूर्व में साफ सफाई के लिए मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। हो सकता है अन्य क्षेत्रों में मुर्दों को जलाया जाता होगा, जिस कारण पुरातत्वविदों के पास इसकी कोई सबूत नहीं है। तकरीबन 40,000 साल पहले मसलन शवों को सजाना और कब्र में प्रतीकात्मक वस्तुओं को रखना। लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में एक नया अध्याय खुला। कृषि और पालतू जानवरों के साथ बसा हुआ मानव समुदाय। मानव अपने अस्तित्व के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चित्रों, गीत संगीत और लिखित शब्दों के प्राचीन रूपों का इस्तेमाल करता था। शिकारी गांवों में बसने लगे और वे गांव मानव संस्कृति के उद्गम स्थल बन गए। लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की आबादी 10 लाख से भी कम थी। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती और फैलती गई, स्थानीय समूह विकसित हुए और जैविक विविधता बढ़ी। वातावरण में आने वाले लगातार बदलावों के मुताबिक हम अपने आप को ढालते गए। इससे और अधिक विविधता है। यह प्रक्रिया जारी है। মানুষের এই বিবর্তনের রূপগুলো খুবই সুন্দরভাবে প্যানোরামা শো এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে। আমার তো খুব ভালো লেগেছে আজকের এই প্যানোরামা শোটা। তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। সায়েন্স সিটি ভ্রমণের ফার্স্ট পার্টটা যদি দেখে থাকো সেটাও কেমন লেগেছে জানিও, আর সেকেন্ড পার্টটা আজকে কেমন লাগলো সেটাও কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।